This is Delhi. Please stand by for our next program. This is Akashvani. We now bring you the daily highlights of the 38th National Games being held at Uttarakhand. 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड। Good evening and welcome to the highlights of the day's events at the 38th National Games being held in the majestic mountain state of Uttarakhand. You're with me, Shivakumar. Today was day 11 of these national games, which is a launch pad for future sports stars of India. While Dehradun, the capital, woke up to a cool sunny morning, venues across Uttarakhand witnessed heated contests between young rivals. Pithoragarh saw riveting action with hosts Uttarakhand clinching the first gold in the contact sport boxing. 13 gold medals were at stake on the final day of the event. Let's get straight into the action. Here's Vivek Wankhede from the Sri Hari Singh Thapa Sports College in Pithoragarh. Today was the final day in boxing here at Sri Hari Singh Thapa Sports Indoor Stadium, Pithoragarh. Various finals in different weight categories were held. A lot of action was seen in the arenas here. In men's flyweight, Mangdengam Jadumani from services won gold by defeating Anshul Punia of Chandigarh in the finals. Haryana and Manipur were at the third position. Mangdengam. आज मैं फाइनल जीत के मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरा एम यही रहेगा कि मैं अभी आने वाले एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स में और अच्छा करना चाहूँगा और ओलंपिक के लिए तैयारी करूँगा। मेरा इस नेशनल गेम में बहुत अच्छा हुआ है और आगे भी अच्छा करते रहूँगा। In men's featherweight, Sachin from services bagged the gold. Himachal Pradesh won silver. Haryana and Madhya Pradesh bagged the bronze. Sachin. अच्छा एक्सपीरियंस था नेशनल गेम्स में और फाइनल बाउट एचपी के साथ थी। बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं आगे और बढ़िया करता रहूँगा। In men's light welterweight, Vansaj from services topped with a gold medal. Vansaj. मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने और हमारी टीम ने बहुत मेहनत करी थी कंपटीशन के लिए। अभी लास्ट नेशनल में मैं क्वार्टर फाइनल में लॉस कर गया था, बट हम नेशनल गेम्स में गोल्ड का टारगेट बनाया था, जो आज मेरी टीम के साथ मेरा पूरा हुआ है। आगे मैं इंटरनेशनल लेवल में अपने इंडिया के लिए अच्छे मेडल लाने की कोशिश करूँगा और उसकी तैयारी करूँगा। In men's lightweight, Hitesh from services beat two-time Olympian Shiva Thapa representing Assam. Hitesh got very emotional after the victory. गोल्ड मेरा लेना बहुत जरूरी था क्योंकि मैं अभी फिलहाल ही मैं नेशनल चैंपियन बना हूँ, तो उसको बरकरार रखने के लिए मेरे को ये गोल्ड भी लेना बहुत जरूरी था। और आगे अभी कैंप वगैरह लगेंगे तो इंटरनेशनल होने, वर्ल्ड कप आ रखा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो टारगेट अगला वही है। In men's light heavyweight, Lakshya Chahar from services emerged as the best boxer to defeat Himanshu of Uttarakhand. Lakshya. अभी हाल ही में जो नेशनल गेम्स चल रही थी उत्तराखंड में, उसमें मैंने गोल्ड लिया, उसमें मैंने ओलंपियन को हराया, एशियन मेडलिस्ट को हराया और वन साइडेड मेरी बाउट रही थी। फिलहाल तैयारी रहेगी मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो सितंबर में होने जा रही है इंग्लैंड में, फिर वर्ल्ड कप है जो इंडिया में है और मेन टारगेट मेरा 2028 में ओलंपिक में रहेगा। और मैं यूथ को यही संदेश देना चाहूंगा, भाई अपना काम जोश और जुनून के साथ करिए, सब कुछ मिलेगा, इतना मिलेगा जितना आपने सोचा नहीं था, पर अपने गेम के पक्के खिलाड़ी तो बनिए। मंजिल मिलेगी, भटक करी सही गुमराह तो वो हैं जो कभी घर से निकले नहीं। In men's heavyweight, Kapil Pokhariya of Uttarakhand was at the top position beating Madhya Pradesh 4-1 in the final bout. Kapil. बहुत खुशी है सर गोल्ड जीतने की। अभी मैं पूरी तरह फिट भी नहीं था सर, मेरे हाथ की सर्जरी हुई थी 4 महीने पहले। मैं यहाँ से पूरी ट्रेनिंग करके आया था, मैंने यही अपना पूरा वो जो ट्रेनिंग करी जो था उसमें गोल्ड जीत के बहुत खुशी है सर उत्तराखंड के लिए। In women's light fly, Nivedita Karki of Uttarakhand won the first gold medal in boxing for Uttarakhand at this national games beating Kalpana from Haryana. Nivedita. ये गोल्ड पूरे उत्तराखंड के लिए है और काफी तैयारी करी थी गोल्ड जीतने के लिए। आगे जो भी मेरे टूर्नामेंट्स आएंगे उनके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। आगे नेशनल चैंपियनशिप या सीनियर नेशनल, तो उसमें गोल्ड लेने की। बेसिकली मेरा गांव पिथौरागढ़ ही है और मैं यहीं से ही बनी हूँ, मेरा यहीं से ही स्टार्टिंग है, तो बहुत अच्छा लग रहा था, सबका सपोर्ट था, एक अलग ही जोश है इसे गोल्ड लाने का। In women's featherweight, Sakshi from services bagged the gold, winning the finals with unanimous point decision 5-0 against Himachal Pradesh. Sakshi. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सर्विसेज को, अपनी फैमिली को, सबको गोल्ड मेडल दे पाई। लास्ट टाइम भी मेरा गोल्ड मेडल था नेशनल गेम्स में जो कि गोवा में हुए थे और इसमें भी मैंने अपने उसको मेंटेन रखा, मैं अपनी गोल्ड मेडल जीत पाई। In women's lightweight, Jasmine from services defeated Haryana 5-0 in the final bout to bag the gold. Jasmine. अभी आगे तो अभी हमारी भी नेशनल चैंपियनशिप भी होगी तो उसके लिए वापस जाके तैयारी करेंगे। उत्तराखंड ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पे करवा रखी है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से लेके हो या फिर वेन्यू की हो या होटल्स की हो, और साथ में जो एक डाइट भी चाहिए होती है खिलाड़ी को, तो वो भी काफी अच्छा है यहाँ पे। In women's middleweight, Lovelina Borgohain representing Assam beat Chandigarh 5-0 in the final bout. Lovelina. अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा आगे का प्रिपरेशन है कि मैं नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रहा है उसके लिए मुझे तैयारी करना है और ओलंपिक के बाद थोड़ा ब्रेक था, इसी से स्टार्ट किया था मैंने। और यहाँ उत्तराखंड में अच्छा लगा, लोग भी बहुत अच्छे हैं, जगह सुंदर है और आने वाले जनरेशन को मैं ये बोलूँगी कि जो बॉक्सिंग में आना चाहते हैं कि बॉक्सिंग में एक बहुत अच्छा फ्यूचर भी बन सकता है, हम अपने देश के लिए मेडल ला सकते हैं।
Medals were decided late yesterday in Taekwondo contests happening in Haldwani. Today, 7 gold medals were up for grabs. Let's get the details from Sri Krishna and Pratishtha Jain. तेज कदम, फुर्तीले मूव्स, बिजली जैसी किक्स और पंचेस और अदम्य आत्मविश्वास, यही तो है ताइक्वांडो। हल्द्वानी के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस खेल के मुकाबले पूरे जोश और जुनून के साथ खेले जा रहे हैं। हर खिलाड़ी का एक ही लक्ष्य है, गोल्ड मेडल और अपने राज्य का नाम रोशन करना। तो आइए जानते हैं रोमांचक मुकाबलों और उन योद्धाओं के बारे में जिन्होंने अपने दमदार प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। ताइक्वांडो में पुमसे एक सेल्फ डिफेंस एप्लीकेशन है जिसमें आज मिक्स्ड पेयर के मुकाबले संपन्न हुए। इस मुकाबले में एक टीम के 2 योद्धा एक साथ हर ब्लॉक और किक में लयबद्ध होते हैं। समन्वय और अनुशासन की कसौटी पर खरे उतरे महाराष्ट्र के वंश और मृणाली हार्नेकर ने गोल्ड पर कब्जा किया। ये सब सिर्फ एक इंडिविजुअल वर्क नहीं था, ये सब टीम वर्क था। मैं, मेरे कोच, मेरी पार्टनर मृणाली हार्नेकर, सब ने मुझे मोटिवेट किया। मेरा पूरा टीम, उनका सबका हाथ है इस गोल्ड में और बहुत अच्छा लग रहा है। 6 to 7 आवर्स हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे डेली। फ्रूट मिल रहा है उसका बहुत अच्छा लग रहा है। उनसे बहुत यूज़फुल है, स्पेशली वुमेंस के लिए। रजत पदक अरुणाचल प्रदेश के मिचिंग और रिकपिन यूदो ने जीता। इतना सेटिस्फाइड तो नहीं है ये जो परफॉर्मेंस। एज ए प्लेयर हम लोग भी पता होते कि कहाँ कितना है पॉइंट्स, हमारा जितना परफॉर्मेंस हमने दिया है, मतलब ऐसे कोई कमियां तो नहीं रह गए हम लोग। फीमेल ओवर 73 किलोग्राम कैटेगरी में हरियाणा की हिमांशी अंतिल फाइनल तक पहुंची। वहीं ओडिशा की रुचिका और असम की रुदाली ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अंडर 49 किलोग्राम कैटेगरी में यूपी की वैष्णवी, उत्तराखंड की दिव्या, हरियाणा की दीक्षा, महाराष्ट्र की नयना विनाश ने सेमीफाइनल में दस्तक दी है। उत्तराखंड से दिव्या। स्ट्रेटेजी जीतने की रहेगी। ऑफ कोर्स नेशनल गेम्स ऑब्वियसली आपको अपोनेंट आपको नेक टू नेक ही मिलेंगे। कोचेस का सपोर्ट था, उन्होंने बताया और फिर जो मेरा गेम था वो मैंने खेला तो मैंने मैच जीत लिया। फीमेल अंडर 62 किलोग्राम के सेमीफाइनल में महाराष्ट्र की मनीषा, उत्तराखंड की भूमिका, यूपी की ऋषिता और महाराष्ट्र की भारती ने जगह बनाई है। वहीं पुरुष श्रेणी में ओवर 87 किलोग्राम में महाराष्ट्र के गौरव, उत्तराखंड के काव्य और राजस्थान के ऋतुराज सेमीफाइनल में पहुंचे। अंडर 74 किलोग्राम में ऋषभ अधिकारी उत्तराखंड से फाइनल में पहुंच चुके हैं। मेरा पहला नेशनल गेम्स था और प्राउड फील कर रहा हूँ मैं अपने मम्मी पापा, कोच और अपने लिए, खुद के लिए। सब ने बहुत जोर लगाया मेरे लिए। स्ट्रैटेजी ये रही कि सेम मैं हर अटैक कर रहा था, वो सेम डिफेंड कर रहा था। बैकिंग हमारी कामयाब रही, वहीं से गेम पूरा पलट गया। उत्तराखंड के ही राहुल, जम्मू कश्मीर के आशीष और सर्विसेज के रामवीर सेमीफाइनल्स में पहुंचे। अंडर 58 किलोग्राम में मध्य प्रदेश के हनी यादव, सर्विसेज के अब्दुल, महाराष्ट्र के आयुष और हरियाणा के अमन कुमार भाग लेंगे। आयुष बताते हैं, Fight is generally a little hard, but now I've gotten used to it, so I'm more confident. No specific strategy, I just action reaction. To be honest, everyone is a good player, right? So I think everyone is a nice opponent for me. सभी श्रेणियों के फाइनल मुकाबले देर रात तक चले। Archers from 6 states vied for 5 gold medals on offer at the Rajiv Gandhi International Cricket Stadium in Dehradun this afternoon. Mahendra Singh Lalas followed the fortunes of the archers. आर्चरी में इंडियन राउंड के मुकाबले आज खेले गए, जिनमें 5 स्वर्ण पदकों का फैसला हुआ। पुरुष एकल में उत्तर प्रदेश के मनीष के सामने थे उन्हीं के राज्य के शुभम। दोनों दोस्तों के इस मुकाबले में अंततोगत्वा विजय मिली मनीष को। कैसा लगा उन्हें अपने दोस्त को हराकर? वैसे तो बुरा फील हो रहा है, लेकिन क्या करें सर, खेल अपना बेस्ट देना आता है सर। शुभम ये बताओ कि दोस्त से हार के कैसा लग रहा है? जैसे ये खेला मैं भी अच्छा खेला, बस थोड़ा टेक्निक का ही फर्क रहा जी। अन्य अच्छा खेल ले जी बहुत दोनों प्लेयर। हमने बात की उत्तर प्रदेश की टीम के प्रशिक्षक से। मेरा नाम प्रियांक त्यागी है और मैं यूपी आर्चरी टीम का कोच हूँ। ये जो हमारी इंडियन आर्चरी है, ये एक्चुअल में हमारी ट्रेडिशनल आर्चरी है। आपने सुना ही होगा, श्री राम अर्जुन वगैरह से ये जुड़ी हुई है। और हमारे में धनुष पहले ऐसे ही हुआ करते थे, लकड़ी के ही। तो इंटरनेशनल में इसमें क्या है, वर्ल्ड पुलिस गेम्स वगैरह में होता है, या फिर होता भी है तो कुछ टूर्नामेंट होते हैं, इनविटेशन टूर्नामेंट, उनमें ये ट्रेडिशनल आर्चरी के अकॉर्डिंग इसको शामिल किया गया है। परंतु इंटरनेशनल लेवल नहीं है, तो इस पे बहुत ज्यादा सपोर्ट इंडिया में भी नहीं मिलता है। लेकिन मेरा तो यही कहना है कि भाई बड़ी बड़ी कंपनियां जो रिकरो को, कंपाउंड को सपोर्ट कर रही है, वो इनमें से अच्छे प्लेयर, टॉप 4 प्लेयर या टॉप 8 प्लेयर को उठाए और उनको जो है फंडिंग करके उनको अच्छे इक्विपमेंट दिलवा के रिकर और कंपाउंड के, तो उनको फिर इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाए, क्योंकि ये भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं इंडियन राउंड के। महिला एकल की विजेता बनी मणिपुर की रोजीना देवी। उन्होंने फाइनल में छत्तीसगढ़ की चांदनी साहू को हराया। I feel so happy and excited too, and I want to thank to my parents for support and to my coach. मेरा माँ और बाप में क्रेडिट देना चाहते हैं, क्योंकि मेरा फैमिली गरीब है, लेकिन उन लोगों ने मुझे खेलने से मना नहीं किया, सपोर्ट किया, इसीलिए। इंडियन राउंड मिश्रित युगल की विजेता बनी महाराष्ट्र की टीम। मैं गौरव संजय राव चांदनी, मैं यहाँ पे मिक्स टीम में गोल्ड मेडल जीता हूँ, बहुत खुशी हो रही है।
मेरा नाम भावना संतोष सत्यगिरी है और मैं महाराष्ट्र स्टेट से हूँ और मुझे अभी गोल्ड मेडल जीत के बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम हैप्पी फॉर गोल्ड मेडल। पुरुषों और महिलाओं की टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता हरियाणा ने। ये है हरियाणा टीम के कोच। मैं हरियाणा से आर्चरी कोच मंजीत मलिक और हमारी दोनों बॉयज और गर्ल्स की दोनों टीमें हमारी फाइनल में गोल्ड मेडल के साथ जीत के जा रही हैं इधर से। और हमारी टीम में था राहुल, आशु और आशीष मलिक और रवि मलिक और लड़कियों की टीम में है दिव्या, काजल, मोनिका और निकिता। तो बड़ा अच्छा खेले हमारे बच्चे। इंडियन आर्चरी के बारे में हमने कुछ जानकारी हासिल की डॉक्टर शिहान हुसैनी से। There are three different kinds of archery event. We have the recurve, the compound, as well as the Indian round. The recurve is the only equipment that is used in the Olympics. The skill of the archer is tested. They shoot a distance of 70 meters into a target phase, which is 120 centimeters in dia. The compound bow is a mechanically advantaged bow with pulleys and cams. It's a little difficult to pull in the first few seconds, but then it takes over and it's very easy to hold it. It comes at different poundages, right from people do use, you can use till 60 pounds, and today we are the number one in the world in compound archery, but compound archery is not there in the Olympics. And the Indian round has been invented by the Archery Association of India and is made with a wooden handle and bamboo limbs, and the arrows that are shot are used with bamboo, whereas in the recurve and the compound, the arrows are made of ACC or aluminum coated carbon. Those arrows are about 4,000 rupees each, whereas the Indian bow arrows are just about 100 rupees each. And in the Indian bow is designed completely like a recurve bow, but the distance that is shot is 50 meters into a target face which is 122 centimeters wide. आप हैं आर्चरी प्रतियोगिता के कंपटीशन डायरेक्टर डॉक्टर जोरिस पोलूस। Event all went smoothly without any protest, most importantly, and the standard of archery here was very high. In tennis, team events were held followed by doubles quarterfinals today. Not many stars in action, but the matches held today in Dehradun were not devoid of energy. Shahid Azmi has more. 38वें राष्ट्रीय खेलों में लॉन टेनिस के टीम इवेंट देहरादून के परेड ग्राउंड पर आज संपन्न हो गए। महिला और पुरुष दोनों वर्गों के खिताबी मुकाबले बेहद रोमांचक रहे। पुरुष वर्ग में तमिलनाडु ने कर्नाटक को हराकर गोल्ड मेडल जीता, जबकि महिला वर्ग में महाराष्ट्र ने गत विजेता गुजरात को हराकर टाइटल अपने नाम किया। पुरुष वर्ग का खिताबी मुकाबला पल पल बदलता रहा। कभी कर्नाटक तो कभी तमिलनाडु का पलड़ा भारी नजर आ रहा था, मगर अंत में ऊंट ने करवट ले ही ली और तमिलनाडु चैंपियन बन गया। इस वर्ग का पहला एकल मैच तमिलनाडु के अभिनव एस संजीव ने कर्नाटक के ऋषि रेड्डी को 3 सेट तक चले मैच में 3-6, 7-6, 6-4 से हराकर अपनी टीम को बढ़त दिलाई। सुनते हैं अभिनव को। Final match was very tough. I think I was set and one breakdown, but then I just hung in there, stayed, and then in the end I just got through somehow. I'm very happy to. Second set was very close. It could have gone either way, but in the end somehow the tie break I just stayed and then I was able to pull it my way. And then that's it. I was comfortably up. I should have been home earlier, but then it happens. Finals is always tough. It's the first time I'm actually winning a match in a final, so I'm actually very happy to come through today. दूसरे एकल मैच को तमिलनाडु के मनीष सुरेश कुमार ने जीतकर ताबूत में अंतिम कील ठोक दिया। मनीष ने कर्नाटक के प्रज्वल देव को 7-5, 4-6, 6-3 से हराने के बाद अपनी खुशी का इजहार कुछ यूं किया। It was a very tough match because Prajwal is a very good player, and even the last year national games he carried the team single-handedly, so he's a really good player. And yeah, I had to play really well today, and I'm glad I fought through, and it was a good first set. I mean a good second set also, but he played very well. But I'm happy that I was able to get the job done in the end. इस वर्ग का कांस्य पदक सर्विसेज और महाराष्ट्र ने जीता। वहीं महिला वर्ग में महाराष्ट्र ने गत चैंपियन गुजरात को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला वर्ग के पहले एकल मैच में गुजरात की धुरंधर झील देसाई के सामने थी महाराष्ट्र की आकांक्षा नित्तूरे। अब तक लगातार जीतती आ रही झील देसाई को आकांक्षा ने 3 सेट तक चले मैच में 6-3, 3-6, 6-3 से हराया। आकांक्षा ने मैच के बाद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये पहले बार नहीं है मैं उसके साथ खेल रही हूँ। वी हैव प्लेड अ कपल ऑफ टाइम्स। मैं 2 बार लास्ट टाइम हारी हूँ उससे, तो ये फर्स्ट टाइम है कि मैं जीती हूँ उसके ऊपर। मेरे को पता था उसका गेम स्टाइल क्या है, वो मेरे को लॉन्गर रखेगी रैली में, तो मेरा गेम प्लान थोड़ा प्रॉपर था आज। आई हैड अ क्लियर माइंडसेट, तो हो गया आज। वो छोड़ती नहीं है आखिरी पॉइंट तक। कल भी उसने 5-1 से कमबैक किया था, तो मेरे को पता था कि मेरे को एवरी पॉइंट पे फोकस करके एवरी पॉइंट पे फाइट करना है, तो मेरा प्लान था। उधर दूसरा एकल मैच जो निर्णायक साबित हुआ, महाराष्ट्र की वैष्णवी अदकर और गुजरात की वैदेही चौधरी के बीच खेला गया। यह मैच सीधे सेटों में वैष्णवी ने 6-3, 6-3 से जीतकर गोल्ड मेडल महाराष्ट्र की झोली में डाल दिया। वैष्णवी अदकर ने अपनी खुशी का इजहार कुछ यूं किया। मतलब वो बहुत अच्छी ओपोनेंट है। मैं उससे काफी बार खेली हूँ पहले, और मैंने अब
तक कभी नहीं जीता उससे। तो मैंने मैच में जाते वक्त ये सब तो नहीं सोच रही थी, मैं कॉन्फिडेंट थी, मैंने खुद में बिलीव किया और मेरी टीम के सपोर्ट के साथ ये मैच हम जीत पाए। मुझे पता था वो कैसे खेलती है, बट मुझे आके मेरा गेम खेलना था, वो मुझे पता है, क्योंकि ये जो कंडीशंस है, फास्ट कोर्ट, फास्ट बॉल्स, ये मेरे लिए ज्यादा सूटेबल है, तो इसलिए अच्छा था। आपको बता दें, महिला वर्ग का कांस्य पदक तमिलनाडु और हरियाणा ने अपने नाम किए। वहीं व्यक्तिगत स्पर्धाएं भी शुरू हो गई हैं, जहां दिल्ली ने पुरुष वर्ग में उत्तराखंड को युगल मैच में 7-5, 6-4 से हराया। टीम के सदस्य शिवांक भटनागर। थोड़ा सा स्टार्टिंग में हम लोगों ने अच्छी लीड ले ली थी, लेकिन उत्तराखंड का लोकल क्राउड होने की वजह से थोड़ा सपोर्ट उनकी तरफ था, तो हम मेंटली थोड़ा सा परेशान हो रहे थे, उन्होंने हमें थोड़ा सा तंग करा था, लेकिन फाइनली हमने थोड़ा सॉल्यूशन निकाला उस चीज़ का और हम लोगों को फाइनली जीत मिल गई। लास्ट पहला सेट में हम लोग कंफर्टेबली जीत सकते थे, हम 5-3 फर्स्ट सेट में अब थे और मेरी सर्विस थी, लेकिन थोड़ी सी कुछ गलतियों की वजह से मेरी साइड से, मेरे पार्टनर की साइड से थोड़ी सी गलतियों की वजह से वो सेट क्लोज हो गया था, 5-all हो गया था। और सेकंड सेट में हम कंफर्टेबली ऑन सर्व मैच चल रहा था 4-3 तक, फिर हमने 4-3 पे उन लोगों की सर्व ब्रेक करी और फिर सेट अपनी तरफ। उधर महिला युगल मैच में हरियाणा ने तेलंगाना को 6-1, 7-6 से हराया। हरियाणा टीम की सदस्य अदिति त्यागी को सुनते हैं। डबल्स इवेंट में अभी हमने हराया है तेलंगाना की पावनी पाठक और चयिका को, और स्कोर रहा 6-1, 7-6 हम जीते हैं। काफ़ी अच्छा मैच था और हमने भी काफ़ी अच्छा खेला, हमारा टीम काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन था और हम खुश हैं अपने रिजल्ट से काफ़ी। तो हमारा मेडल तो पक्का है, अब अगला हमारा सेमीफाइनल है, फर्स्ट सीड है गुजरात के वैदई और झील, तो अब हम उसकी तैयारी करेंगे आगे। Today was the final day of football at the 38th National Games, which witnessed teams that were strong traditionally being ousted early. Here's Momar with Shauja Chaudhary and Kavindra Kumar with a wrap of the action from Haldwani. In a thrilling encounter at the Indira Gandhi International Sports Complex in Haldwani, Delhi emerged victorious, defeating Assam 4-2 in a nail-biting bronze medal match. Delhi opened the scoring in the 20th minute with a neat finish by their captain Mahib, while Ishan Bok doubled the lead right at the stroke of halftime. Akrang Nazari halved the deficit 2 minutes into the second half to give some hope to Assam, and they kept pressing to find the equalizer from there on, but Aditya scored the third goal for Delhi in the 71st minute to reinstate the 2-goal cushion. However, Assam wasn't willing to give up easily as they pulled 1 goal back in the 81st minute, courtesy of a brilliant strike by Brahma. In the last nerve-wracking minutes of the game, Delhi sealed the match in the 89th minute as Aditya scored his second goal of the game, finishing off a swift counter-attack. An ecstatic captain of Delhi team, Mahib. सेमीफाइनल तो गवा दिया था, हम हार चुके थे उत्तराखंड से, वरना आज हम फाइनल में होते, लेकिन आज हमें कोच ने थोड़ा और फ्रीली छोड़ा कि दिस इज योर गेम, तो जस्ट बी नेचुरल, जो हम खेल सकते हैं वो खेलो और फ्री होकर खेलो। दिल्ली का फर्स्ट मेडल है, बस मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास सच में शब्द नहीं है बताने के लिए कि कितना मैं खुश नसीब फील कर रहा हूँ, कितना हैप्पी फील कर रहा हूँ ये मेडल पाने के बाद। डबल गोल स्कोरर Aditya. सबने अच्छा खेला, अपना गेम खेला, जीत के हम लोग गोल मारा, सबने बढ़िया खेला। पहला और सेकंड का मेडल का था, बट अब अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया, तो अब थर्ड प्लेस के लिए खेला और हम लोग जीते फर्स्ट टाइम दिल्ली, बहुत ज्यादा खुश है हम सब लोग। A delighted coach of Delhi, Anup Singh. हम लोग तो मेडल के लिए फाइट कर रहे थे, ठीक है, स्टार्टिंग से ही हम लोगों ने सेमीफाइनल में थोड़ा हार्ड लगता, बट एक ये लास्ट मौका हमारे पास बचा था, तो हमने इस मौके पे चौका मारने की कोशिश करी और वो चौका लग गया, तो मेडल तो हम लेके जा ही रहे साथ। लास्ट टाइम हार्ड लगता, बट एटलीस्ट ब्रॉन्ज भी है। Assam captain Pragyan expressed disappointment over the defeat. सेमीफाइनल हारने के बाद एक आखिरी मौका था और हम लोग ये ले नहीं पाया, इसके लिए हम लोग डिसअपॉइंटेड है, लेकिन हम लोग का थोड़ा डिफेंडिंग एरर हुआ, हमको और थोड़ा फोकस चाहिए था डिफेंडिंग में, क्योंकि हम लोग को पता था कि हम लोग गोल तो जरूर मारेंगे, लेकिन हम लोग का वही छूट गया कि हम लोग गोल मिस। यही फुटबॉल है, लेकिन क्या कर सकता है, हम लोग अगले साल के लिए फिर से ट्राई करेंगे। Assam coach Maneshwar Mushahari highlighted the lapses that cost the team the match. क्योंकि आज थोड़ा बैटल मैच था, लेकिन हम लोग ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि जीतने के लिए, लेकिन हम लोग का थोड़ा मिस पास ज्यादा हो रहा है। दिल्ली टीम अच्छा खेल रहे हैं, वो लोग बहुत अच्छा टीम है, वो लोग का गेम कॉम्बिनेशन भी ठीक है और वो लोग मिस पास कम किया, तो वो लोग जीतने के लिए हासिल किया बस। Kerala have picked up the gold in the men's football competition at Haldwani. They won the final against Uttarakhand 1-0. The only goal of the game was scored by Gokul in the 54th minute in a tight and tense affair. The temple town of Haridwar witnessed action in hockey where Uttarakhand women took on Mizoram. Manish Bhattacharjee and Rajiv Ranjan Tiwari witnessed the spirited encounters. वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम हरिद्वार में सुबह सर्द हवाओं के बीच हॉकी में महिला वर्ग का पहला मुकाबला खेला गया। पूल बी की दोनों बेहतरीन टीमें झारखंड और महाराष्ट्र एक दूसरे को चुनौती देती नजर आई और अंततः मैच बिना गोल के 0-0 पर समाप्त हुआ। मैच के बाद झारखंड की कप्तान अलबेला रानी टोप्पो
टोप्पो। आज तो थोड़ा मतलब मॉर्निंग था इसलिए ठंडा भी था, तो हमारे साथ नहीं हो पा रहा था, पर उनको हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम लोग स्कोर निकालने का। महाराष्ट्र की कप्तान प्रियंका वानखेड़े। काफी अच्छा खेला हमारी टीम ने, पूरा 100% अपना एफर्ट दिखाया। हमारा मेन एम था या तो जीत के जाना या तो 1 पॉइंट लेकर जाना। महिला वर्ग का दूसरा मैच होस्ट उत्तराखंड और मिजोरम के बीच खेला गया। मिजोरम की टीम ने अपने स्किल और हुनर का नायाब नमूना पेश किया और मैच को 4-0 से अपने नाम किया। मैच के बाद मिजोरम की कप्तान लाल रुवात फेली। बाकी टीम कंपेयरिंग से हमारी टीम बहुत ही ज्यादा जूनियर है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे पहली बार हिसाब से तो हम लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो बहुत प्राउड फीलिंग्स हो रहा है। और आज का महिलाओं का अंतिम मैच कर्नाटक और ओडिशा के बीच खेला गया। मैच को ओडिशा की लड़कियों ने एक तरफा बनाया और मैच ओडिशा ने 4-1 से अपने नाम किया। मैच के बाद ओडिशा की कप्तान जीवन किशोरी टोप्पो। आज का ओवरऑल गेम थोड़ा दोनों मैच से थोड़ा कम था, पर स्कोर आज थोड़ा अच्छा हुआ। हरिद्वार में पुरुषों का पहला हॉकी मैच पदक का रंग बदलने की जद्दोजहद लगी। हरियाणा के पास 37वें राष्ट्रीय खेलों का सोना पड़ा है, तो उत्तर प्रदेश के पास कांस्य पदक। उत्तर प्रदेश के शारदानंद तिवारी की गोल के जरिए उत्तर प्रदेश ने हरियाणा को 2-1 की बढ़त दिलाई और अंक सारणी में 7 अंकों से शीर्ष पर पहुंचाया। उत्तर प्रदेश के कप्तान प्रशांत सिंह चौहान। आज हम लोगों ने एक यूनिटी के साथ खेला, बहुत ही अच्छा खेला और सभी ने रब भी खेला, थोड़ा वाद विवाद भी हुआ मैच में, लेकिन ये था कि लास्ट स्कोर 2-1 से हम लोग जीत के ही वापस निकले। पुरुषों का आज का दूसरा लीग मैच उत्तराखंड और तमिलनाडु के बीच खेला गया। दोनों ने 1-1 की बराबरी के साथ सारणी में 1 अंक बटोरा। आज के तीसरे और अंतिम लीग मैच में करो या मरो का जज्बा लेकर उत्तरी मध्य प्रदेश की पुरुष टीम को अंक तालिका में अपनी जगह बरकरार रखनी थी। वहीं 3 अंक के साथ पूल ए की तालिका में दूसरे स्थान पर टिकी पंजाब की टीम को एक नई जीत की तलाश थी। अंततः पंजाब ने 4-3 से मध्य प्रदेश को शिकस्त दी। पंजाब के कप्तान हरजीत सिंह। यही तो हमने पहले प्लान किया था कि आगे जो मर्जी होता रहे, फॉरवर्ड जितनी मर्जी गलती करे, डिफेंस में नहीं होना चाहिए। बट उसके बाद जब हम एक गोल खा लिया, फिर उसके बाद हमको ऊपर चढ़ना ही था, क्योंकि और इतना पीछे नहीं रह सकते थे। कल पुरुष और महिला वर्ग में 2-2 यानी कुल 4 मैच खेले जाएंगे। Rudrapur, the gateway to Kumaon, witnessed close contests in handball, which began this morning. Nitish Arora reports. हैंडबॉल के लिए पुरुष और महिला वर्ग की टीमों को ए और बी ग्रुप्स में विभाजित किया गया है। पुरुष वर्ग में ग्रुप ए में सर्विसेज, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड की टीमें हैं, जबकि ग्रुप बी में हरियाणा, छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश व झारखंड की टीमें हैं। महिलाओं के ग्रुप ए में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की टीमें हैं, जबकि ग्रुप बी में हरियाणा, दिल्ली, गोवा और बिहार की टीम्स हैं। सभी ग्रुप्स के आज 2-2 मैच खेले। सबसे पहले महिला ग्रुप बी में हरियाणा ने बिहार को 46-11 के स्कोर से हरा दिया। ग्रुप ए में हिमाचल प्रदेश की महिलाओं ने उत्तराखंड की टीम को 45-6 के स्कोर से हराकर अपने आप को इनविंसिबल घोषित कर दिया। कप्तान मेनिका। हमारे हिसाब से तो कोई भी टीम नहीं है, पहले भी गोल्ड लेके गए थे और इस बार भी गोल्ड ही लेके जाएंगे, वो भी 1 साइडेड लेके जाएंगे। हाईएस्ट स्कोरर भावना। बहुत अच्छा लग रहा है, अभी मैच खेला 1 साइडेड था तो। हिमाचल कोच स्नेहलता। नेचुरली कॉन्फिडेंस तो है कि हम लोग अच्छे प्रदर्शन करेंगे, जीत के जाएंगे। दोनों 1 साइडेड मैच के बाद लग रहा था टीमों में भारी अंतर है, लेकिन पुरुष ग्रुप ए में राजस्थान और दिल्ली का कांटे का मैच रहा, जिसे अंततः दिल्ली ने 31-30 1 गोल डिफरेंस से जीता। कप्तान बजरंग ठाकुर। फर्स्ट ये हमारा मैच था, तो इस चक्कर में लड़के थोड़ा डिसबैलेंस हो गए थे। अगले ही मैच में महिलाओं के ग्रुप ए में राजस्थान का सामना उत्तर प्रदेश से रहा और राजस्थान की महिलाओं ने 1 गोल के अंतर से उत्तर प्रदेश को हराकर पुरुष टीम का बदला ले लिया। स्कोर 23-22। कप्तान वर्षा झाखड़। मोटिवेशन थी क्योंकि राजस्थान हमारी टीम है, तो पर वो बॉयज है, तो वो मोटिवेशन, एक एग्रेशन था हमारे अंदर कि हमें जीतना है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता चला गया, मैचेस और भी दमदार होते चले गए। पुरुषों के ग्रुप बी में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मैच तो इतना क्लोज रहा कि अंततः 28-28 के स्कोर पर ड्रॉ छूटा। दोनों टीमों को 1-1 अंक। टीमें 1-1 गोल का डिफरेंस बना के रख रही थी। साइड लाइन पे असिस्टेंट कोच आनंद छत्तीसगढ़ के हैं, बहुत ज्यादा एनिमेटेड नजर आ रहे थे। आर यू रिलैक्स्ड नाउ? तो सर रिलैक्स तो नहीं है, क्योंकि पूल मैच ड्रॉ होने से आगे जाके पॉइंट सिस्टम ये सब में बहुत कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है। कोच को तो पसीना निकल जाता है। कल हैंडबॉल के मैदान में 9 मैचेस खेले जाएंगे। In netball, 12 pool matches were played at the Kanchenjunga Hall of Maharana Pratap Sports College in Dehradun. Sankalp Mishra has the details. आज महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून के कंचनजंगा हॉल में नेटबॉल ट्रेडिशनल स्पर्धा में पुरुषों और महिलाओं के लीग मैचेस का शुभारंभ किया गया। नेटबॉल की सभी स्पर्धाओं के बारे में जानकारी देते डायरेक्टर ऑफ कॉम्पिटिशन अशोक कुमार। नेटबॉल की बात करें तो कल हमारी ओपनिंग थी और आज से जो ट्रेडिशनल के मैच वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये हमारे 3 ग्रुप के मैच होते हैं, 3 इवेंट है हमारे। एक तो ट्रेडिशनल का है, एक फास्ट 5 है और तीसरा है मिक्स नेटबॉल।
जो ट्रेडिशनल नेटबॉल है उसमें 16 टीमें हैं, 8 गर्ल्स है 8 बॉयज है, और जो फास्ट 5 है उसमें भी 16 टीमें हैं, और जो मिक्स नेटबॉल है उसमें 8 टीमें भाग ले रही हैं। पुरुषों की ट्रेडिशनल स्पर्धा में आज तेलंगाना ने राजस्थान को 43-29 से, हरियाणा ने हिमाचल को 52-41 से और उत्तराखंड ने कर्नाटक को 52-41 से मात दी। महिलाओं की ट्रेडिशनल स्पर्धा में चंडीगढ़ ने कर्नाटक को 54-40 से, राजस्थान ने तेलंगाना को 62-52 से और उत्तराखंड ने केरला को 50-49 से हराया। कर्नाटक और उत्तराखंड के बीच खेले गए पुरुषों के ट्रेडिशनल मुकाबले में उत्तराखंड ने मैच के शुरुआती मिनट्स में ही अच्छी लीड हासिल कर ली और पूरे मैच में इसे बरकरार रख मैच को 50-41 से जीत लिया। टीम उत्तराखंड की स्ट्रेटेजी और खेल के दौरान मनस्थिति के बारे में जानकारी देते हुए टीम के अनुभवी गोल अटैकर नितिन: हमने जो पहला अपना क्वार्टर स्टार्ट किया था तो उसमें हमारा काफी अच्छा चला। सेकंड क्वार्टर में हमारा डिफेंस थोड़ा सा लूज हो गया था, बाकी फिर हमने जो है ना टीम के अंदर टेक्निक्स चेंज किए और उनको हमने मोटिवेट किया, तो हमारी थर्ड क्वार्टर तक डिफेंस हमारा ठीक होने लगा। जिस हिसाब से हमने प्रैक्टिस करी है 2 महीना, उसके हिसाब से हमारी टीम यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारा अभी पहला मैच था और कुछ बच्चों का एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो उस वजह से थोड़ा होपलेस थे। सेकंड और थर्ड क्वार्टर में हमने कवर अप कर लिया था। टीम कर्नाटक एक अच्छी मशक्कत के बाद भी स्कोर्स के अंतर को कम नहीं कर पाई। कारण बताते हुए टीम के कोच पुरुषोत्तम: Our Karnataka team players played well, but point one is weather so cold is there here. One point. Second point is lead maintenance is not possible. Next match, don't worry, I will maintain the lead. उत्तराखंड के लिए आज का दिन शानदार रहा क्योंकि यहाँ महिलाओं की ट्रेडिशनल स्पर्धा में भी उत्तराखंड ने केरला जैसी मजबूत टीम को 50-49 से शिकस्त दी। जीत हासिल करने के बाद उत्तराखंड टीम की सेंटर पोजीशन खिलाड़ी चेतना: हमारा ये पूल का फर्स्ट मैच था और ये हमारा सबसे टफ मैच था, मतलब बहुत ही कंपटीशन वाली टीम थी ये। तो टैक्टिक्स इसमें जो हमें कोचेस ने बताए गए थे वो हमने अप्लाई करे। वैसे हम नॉर्मल मैचेस में अपना 100% देते हैं, बट इस मैच में हमने अपना 200% दिया है। बहुत ही जगह हमारी टीम ने कोऑर्डिनेशन पासेस काम आई है, बट कहीं पे ऐसा हुआ, ये हमारा फर्स्ट मैच था तो सेट होने में टाइम लगा। जहाँ पे हमने प्रैक्टिस करा था थोड़ा उस चीज का हमें डिसएडवांटेज हुआ, बट बेस्ट था हमारा। On to the seemingly laid-back lawn bowls now. Here's Temjan Tiba with more on how favourites Jharkhand, Assam, Odisha and West Bengal fared along with the hosts Uttarakhand. The Lawn Bowls Championship League witnessed an exciting day of matches at the hockey practice ground MPSC Dehradun. The tournament featured high-intensity competition across multiple categories, with teams battling for a place in the semi-finals. In the women's pairs event, the teams from Jharkhand, Uttarakhand, Assam and Odisha secured victories against their respective opponents and advanced to the next round. In the women's pairs event, the team from Jharkhand, Uttarakhand, Assam and Odisha secured victories against their respective opponents and advanced to the next round. The women's triples event saw West Bengal, Assam and Jharkhand emerged victorious in their respective matches, while the contest between Odisha and Manipur ended in a tie. The men's singles matches featured strong performances as West Bengal, Uttarakhand, Jharkhand and Manipur triumphed over their respective opponents, ensuring their spot in the next round. In the men's fours category, Jharkhand, Uttarakhand, Assam and Manipur displayed excellent teamwork and skill. With the competition of today's matches, the semi-finals lineup is now set. Men's singles semi-finals will be between West Bengal versus Bihar and Jharkhand versus Assam. Men's fours semi-finals, Jharkhand versus Manipur, Assam versus West Bengal. Women's pair semi-finals, Jharkhand versus Odisha, Assam versus West Bengal. Women's triple semi-finals, Delhi versus Bihar, Jharkhand versus West Bengal. Dinesh Kumar, the 2022 Commonwealth Games silver medalist and a key player in the Jharkhand men's fours team, shared his thoughts. आज का विन बहुत अच्छा रहा। हम लोग सारे प्लेयर एकजुट होकर बोले ये किए कि भाई एकदम फोकस करो गेम पे और इसको जीतना ही है, और यही था। टीम गेम खेले हम लोग और मैच जीत लिया। Mangal Iba, a member of Manipur's men's fours team, also spoke to Akashvani. आज बिहार के साथ खेल के जीत के सेमीफाइनल में घुस गए। The semifinals will commence tomorrow at 9 a.m., setting the stage for the much anticipated finals, which are scheduled to begin at 1 p.m. The championship will conclude with a medal ceremony at 4:30 p.m., celebrating the achievements of the top performing teams and players. With the stakes high and competition intense, tomorrow promises to be an accelerating day at the Lawn Bowls Championship League. Now here's Shaurja Chaudhary with the latest medals tally. Here's the latest medals tally at the time of production of this highlights program. Services Sports Control Board are on top of the pile with 64 medals, 38 gold, 13 silver and 13 bronze. Karnataka are on second with 57 medals in total, 30 gold, 12 silver and 15 bronze. Meanwhile, Maharashtra, last time's champions, have 99 medals but have picked up 21 gold, 38 silver and 40 bronze to be on the third position.
Catch all the national games action from Uttarakhand exclusive on Akashvani. Same time tomorrow. Stay with Akashvani for hourly news and updates from all the venues in Uttarakhand. We bring you the best in sports. That's all for now. This is Shivakumar signing off. Script and narration, V. Shivakumar. Assistants in production, Shaurja Chaudhary and Khurshid Ahmed. Produced by Mobin Ahmed Khan and Praveen Chand. 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड. You just heard the daily highlights of the 38th National Games being held at Uttarakhand. This program was produced by the Central Production Team of Akashvani.